सर आपको प्रेजेंटर बना दिया, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ द स्लाइड सर। ले रहा हूँ जी सर। ओके ओके पार्टिसिपेंट, जी सर। ओके participants, time to start our second session and our resource person for this session, Mr. Suhail Ahmad is here with us. He is a very experienced teacher, trainer, researcher, and he will talk about managing a college, leadership and team building. Over to you sir, you can start the session. Thank you for the kind introduction. I am not sure. Am I visible? मैं नहीं, ठहर जाए, मुझे कैमरा भी ऑन कर। जी अब मैं सर आपकी स्लाइड नजर आ रही है सर। आप मैं नजर आ रहा हूँ? जी yes, सर आप कैमरा भी विजिबल है सर, यू कैन स्टार्ट। नजर भी आ रहा हूँ और ऑडिबल, मेरी आवाज भी आ रही है सबको? यस सर। स्लाइड, थैंक यू। वील स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। Dear participants and respected participants, my additional introduction is that I have been in civil service, but before I joined civil service in 1980, for around 4 years I used to teach in a college, and I started my life as a lecturer of English in Government Degree College, Murray, which is located in Chika Gali. And then for 2 years on my transfer, I taught the same subject in Gordon College, Rawalpindi. And then I took my civil service exam, joined civil service in 1980. And from 80 till 2013, which is nearly 33 years, I remained in civil service. But during civil service, my passion for learning and training and sharing my experience as a trainer, that kept me attached to civil services academies and training programs, and even going to Punjab University as a teacher, visiting faculty in public policy and public administration, because during my career I also went abroad and took a degree in public management, and I again went abroad twice or thrice and reinforced that degree. So my specialization is not only practical experience of working in the government, but teaching. Plus, I have attained degree in management. Management की degree मैंने ली हुई है USA से, from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. तो इस background के साथ और तकरीबन मैं पंजाब में बड़ी पोस्टों के ऊपर रहा हूँ. Deputy Commissioner भी रहा हूँ भावल नगर में. Then I have been Additional Secretary and Secretary, twice Secretary Planning, then Secretary Health and Secretary Finance also. Then I went to federal government and became Chairman FBR, and also was Secretary of 4 or 5 divisions: Planning Division, Establishment Division, Narcotics Division, and Statistics Division. Came back to Punjab before I retired, and retired as Chairman Planning and Development Board. So with this very brief introduction, what I will share with you during my lecture, which will be about 50 minutes to 55 minutes, or maybe 1 hour, so that we have a good 20 to 30 minutes for question and answers. और question and answers में फिर आप बहुत सी चीजें clarify कर सकते हैं. So during my lecture, I will share about 12 or 13 slides with you. 12-13 slides होंगी. Slides के ऊपर बहुत कम लिखा हुआ होगा, because whatever I have written on these slides, I will use them to debate and discuss the concepts that I have put on these slides. तो हमारा जो उन्वान है वो basically broad unwan hai, managing a college, because all of you are either going to manage a college or you already are managing a college. तो यही हमारा उन्वान है. और उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल है उसको ये दो चीजें करनी बहुत जरूरी होती है. एक लीडरशिप देना, दूसरा लीडरशिप कॉलेज के अंदर डिक्टेटोरियल टाइप की लीडरशिप नहीं होती, उसे एक टीम बिल्डिंग करनी होती है. ही क्रिएट्स अ टीम जो उसके साथ हेल्प करती है इन मैनेजिंग ए कॉलेज. तो दैट इज व्हाई इस टॉपिक को मैंने इस तरह से लिखा हुआ है. हम पहली स्लाइड की तरफ चलें, व्हिच विल अलाउ अस टू डिस्कस मोर ऑन दिस टॉपिक. पहली स्लाइड में मैंने ये कहा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट. आई वांट टू शेयर विद यू
my own understanding and it's not my personal definition, but what I have learned from the management experience and management literature कि मैनेजमेंट की सादा तरीन डेफिनेशन क्या होती है. कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस बड़ी मिल जाएंगी आपको. मैनेजमेंट में बेशुमार पीएचडी होते रहते हैं किस्म की, बट वेरी बेसिक बुनियादी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और कॉलेज के अंदर भी फिर उसकी रेलेवेंस हम देखेंगे. सो मैनेजमेंट का जो बेस्ट डेफिनेशन मैंने लिटरेचर में देखी है वो कहते हैं गेटिंग थिंग्स डन. कि आप काम जो करवाते हैं, काम को करवाना, गेटिंग थिंग्स डन, काम को पाया तकमील तक पहुंचाना, कराना इज मैनेजमेंट, गेटिंग थिंग्स डन. और एंड टू गेट थिंग्स डन, मैनेजमेंट आल्सो इंक्लूड्स डिप्लॉयिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड स्ट्रेटेजिकली. उस काम को करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप डिप्लॉय करें. डिप्लॉय से मुराद उनको आप इस्तेमाल में लाएं, और स्ट्रेटेजिकली, एफिशिएंटली एंड स्ट्रेटेजिकली. ये नहीं है कि वेस्ट करें उनको आप, और स्ट्रेटेजिकली उस जगह पे वो ज्यादा लगाएं रिसोर्सेज जहां आपका फोकस है, जहां जरूरत है. दिस इज व्हाट माय सेकंड लाइन मींस. देन ऑन द थर्ड लाइन आई एम सेइंग कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज कंसिडर्ड स्केर्स एंड लिमिटेड. रिसोर्सेज हमेशा, ये आपका क्या, हर एक का. मैं अभी भी एक यहाँ 2 कंपनीज का चेयरमैन हूँ पंजाब में, तो अभी भी मैं अपनी डिस्कशन खत्म करके मैं अपने ऑफिस से ये कर रहा हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन. वी आर टॉकिंग ऑफ रिसोर्सेज कि हम जो सैलरीज देना चाहते हैं उसके लिए रिसोर्सेज कम है, तो कैसे हम मैनेज करेंगे. सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ ब्रीफ डिस्कशन विद माय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उसके ऊपर. तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती हैं, बट उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ही यू हैव टू फाइंड आउट अ वे टू डू एज बेस्ट एज पॉसिबल. रिसोर्सेज का रोने की बजाय जो है आपके पास, ये नहीं देखना चाहिए कि गिलास में गिलास आधा खाली है. आपको ये देखना चाहिए कि अच्छा आधा खाली है, लेकिन आप उसको इस एंगल से देखें कि आधा फुल है, कि गिलास आधा फुल है, तो जो आधा फुल है उसको मैं किस तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकूं. एंड व्हेन वी use the term resources, and when we talk about the term resources include 3 kinds. Human resources. Human resource वो है जो लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं कॉलेज में. मटीरियल रिसोर्स वो लैंड है, वो बिल्डिंग है, और वो फर्नीचर है, वो आलात हैं, लाइब्रेरी है, जो मटेरियल की फॉर्म में आपके कॉलेज में एग्जिस्ट करती है. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका वो बजट है, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ सैलरीज देते हैं सबको इन अ कॉलेज, बट सैलरीज के अलावा भी कुछ ना कुछ बजट आपके पास, जो कि मैं ये एग्री करूंगा जरूर कि वो नाकाफी होता है. लेकिन आप नाकाफी को भी, जैसे मैंने कहा कि इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द अदर एंगल, दैट ओके जो भी है, व्हाट बेस्ट यूज कैन आई मेक ऑफ व्हाटएवर इज अवेलेबल. तो ये ज़हन में रखें. ये दिस इज माय कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मेरा जाती नहीं है, ये मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे, लिटरेचर पढ़ने, बाहर जाके पढ़ना, प्रोफेसरों से जो सीखा है मैंने, इधर उधर सब ट्रेनिंग के दौरान सीखा है. दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर कि मैनेजमेंट में अगर आप काम नहीं निकाल रहे, जो कुछ भी आपके पास उससे, तो देन यू आर नॉट अ मैनेजर. अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और यही रोना रो रहे हैं कि रिसोर्सेज पूरे नहीं है और ये मसला है और वो मसला है, एंड डूइंग नथिंग, दैट इज नॉट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में ये है कि अगर आपको किसी मैनेजर, प्रिंसिपल किसी जगह पे बैठाया है, तो फिर आप कुछ ना उसको हम आगे चल के देखते हैं कि क्या उसमें. लेट्स गो टू माय नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है मेरी? इट इज टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, क्योंकि हमारे सेशन का लेक्चर कौन 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप, इनोवेटिव लीडरशिप. लीडरशिप क्या होती है, और लीडरशिप को मैं कंसंट्रेट करूंगा कि कॉलेज के अंदर लीडरशिप क्या होती है. तो लीडरशिप के बारे में मैं इससे पहले कि जो नीचे लाइंस हैं उसके ऊपर चला जाऊं, मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं मेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन. सो कॉलेज इज अ डिफरेंट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फौज के अंदर लीडरशिप एक और टाइप की लीडरशिप है, कॉलेज के अंदर एक और टाइप की, ब्यूरोक्रेसी में महकमों के अंदर एक और टाइप की. हर सिचुएशन की अपनी अपनी डिमांड है. तो मैं अब कॉलेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट इस वक्त कर रहा हूँ. तो कॉलेज की लीडरशिप को मैं आपको एक वर्ड आज बताता चलता हूँ जो कि मैनेजमेंट लिटरेचर में मौजूद है. वो एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, या एक स्टाइल ऑफ
मैनेजमेंट है, एक स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, collegial style of leadership. और कॉलेजियल स्टाइल ऑफ लीडरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है? वो डिक्टेटोरियल नहीं होता, वो अथॉरिटेटिव नहीं होता, वो हायरार्किकल नहीं होता, वो ये नहीं होता कि ऊपर एक बस बॉस बना बैठा हुआ है और वो बॉस जो है सबको ऑर्डर करता फिर कैसे। वो डिमांड और ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। वो उसमें कॉलेजियल जो लीडरशिप है और कॉलेजियल जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो खास कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव। दैट लीडरशिप स्टाइल इज पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव। इसके बारे में हम आगे चल के भी बात और लिहाजा प्रिंसिपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हिज स्टाइल शुड दैट ऑफ ए कॉलेजियल काइंड। कॉलेजियल मींस कॉलेज के अंदर जो भी करना है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल से करना है, पूछ के लोगों से करना है, अकेले फैसले नहीं करना, और कोलैबोरेटिव स्टाइल से करना है, अपने फैकल्टी से और लोग फॉर्म ऑफ लीडरशिप। अब लीडर की क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि ना सिर्फ कॉलेज में बल्कि हर जगह ये कॉमन है, बट कॉलेज में ये जो पांच छह मैंने लिखी है फॉर कॉलेज प्रिंसिपल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कॉलेज प्रिंसिपल बिकॉज इट इज अ पढ़ी लिखी जगह, यू आर हेडेड प्लेस जहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, सतह है, लोग पढ़े लिखे आते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वो पढ़ने आ रहे हैं, वो भी आस्ते आस्ते पढ़ के अपना अपग्रेड कर रहे हैं नॉलेज। So a leader should have, a leader who is heading a college should have a vision. And vision means कि उसका कोई ना कोई जिंदगी का मतबा नजर होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जो कहीं बात करे तो कहे जी ये जिंदगी तो बस ये ऐसे ही है कि पैदा हो और जवान हो, बूढ़े हो, बहुत हो जाए। No, he should understand that life has some purpose. जिंदगी का वो मकसद, और जो कॉलेज है उसका भी कोई मकसद है, और उस मकसद को वो तलाश कर रहा हो या तलाश कर चुका है तो उसको फॉलो कर रहा हो, उसको शेयर करे। सो ही शुड हैव अ विजन कि कॉलेज का क्या मकसद है और हमारा क्या मकसद है, उसको हाउ कैन वी स्ट्राइव टुवर्ड्स अचीविंग दैट मकसद। मकसद जरूरी नहीं कि आप पा लें, लेकिन कम से कम उस तरफ सफर तो करें, सफर करना। सो विजन होना। दूसरी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। एंड कम्युनिकेटर मुराद के उसकी जो इंटरेक्शन है विद स्टाफ, विद फैकल्टी, विद स्टूडेंट्स एंड विद दी लोअर स्टाफ, जिसको मैं लोअर नहीं कहता, ऑक्सिलरी कहता हूँ, सपोर्ट स्टाफ कहता हूँ। माली हैं, गार्ड्स हैं, क्लर्क्स हैं, चपड़ासी हैं, सफाई करने वाले हैं, वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल दीज पीपल एट ए गुड लेवल, और वो प्रिंसिपल को समझते हो कि प्रिंसिपल क्या चाहता है, प्रिंसिपल उनकी बात भी समझता हो। तो सो ही शुड बी गुड कम्युनिकेट। वो आगे चल के और मजीद ये मैं खोलूंगा इन चीजों को। फिर उसकी और क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। बाय पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी आई मीन कि वो इंटेग्रिटी सिर्फ पैसे वाली नहीं, बट ये इंटेग्रिटी भी कि अगर उसकी ड्यूटी है प्रिंसिपल की तो वो सुबह इन टाइम पे आ रहा है, और is he available all the time available there? Is he focused on his job? Is he doing what he is required to do? जिस पर्पस के लिए उसको लगाया वो काम कर रहा है, या वो कोई अपने जाती कामों में लगा हुआ है। और इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी मीन्स कि वो उसकी सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो ये नहीं है कि कहीं पे कुछ और स्टैंड ले रहा हो, दूसरी जगह पे कुछ और स्टैंड ले रहा हो, तीसरी जगह वो जो कहता है वही नजर आना चाहिए, जो उसकी बात है वो उसको अपनी पर्सनैलिटी पे भी, ये भी आगे हम चलेंगे तो और ये खोल सकते हैं बात को कि व्हाट डू वी मीन बाय इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। तो पीपल शुड नो, स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, वेयर डज ही स्टैंड ऑन कॉलेज मैटर्स एंड ऑन इवन नेशनल इश्यूज, अगर जरूरत है उसको कुछ करने की। चौथी चीज उसके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए, जज्बा। वो ये नहीं नजर आए कि वो सोया हुआ है, बस कमरे में बैठा हुआ है या कमरे से निकल ही नहीं रहा, या वो ही इज जस्ट इनडिफरेंट, लाताल्लुक नहीं नजर आना चाहिए उसे कॉलेज से। ही शुड शो एंथुसियाज्म, ही शुड बी कॉन्स्टेंटली
roaming around, interacting with students and teachers, going to staff room, going to classes, बरामदों में फिरना, meeting his mali, meeting his guards, meeting all the people constantly. अपने दफ्तर से निकल के भी उसको enthusiasm नजर आना चाहिए. All those who are involved in the college, चाहे वो काम कर रहे हैं या पढ़ने आए हैं या पढ़ाने आए हैं, उन सबको नजर आए कि जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, क्योंकि वो मैं आपको ये बताऊं कि enthusiasm, if it is genuine, लीडर के अंदर हो तो enthusiasm is infectious. Infectious से मुराद ये कि उसका जज्बा जो है वो दूसरों में भी फिर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है. दूसरे लोग भी बजाय लाताल्लुक रहने के वो कॉलेज से लगाओ और कॉलेज में मेहनत करने लग जाते हैं. फिर एक और चीज है डेलीगेशन, नेक्स्ट वर्ड जो मैंने, डेलीगेशन मीन्स कि वो सारे ताकतें, सारे डिसीजंस अपने हाथ में न रखें. ही शुड ट्रस्ट, एंड दैट इज द कोलिजियल फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट. ही शुड ट्रस्ट, ही शुड डेलीगेट. उससे अपने बहुत से इख्तियारात तफवीज़ करने चाहिए, कमेटीज बनानी चाहिए, स्टाफ की, फैकल्टी की, कुछ स्टूडेंट्स की भी करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर हो तो उसके अंदर उनको भी कुछ ना कुछ फैसला साजी में शमूलियत. फिर अगला जो मैंने कहा रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग से ये मुराद नहीं है कि वो एक कुआं है तो कुएं के अंदर छलांग लगा दे कि जी मैं तो रिस्क टेकर हूं. नो, रिस्क टेकिंग से मुराद ये है कि मैंने लाइफ में बहुत से ऐसे शख्सियात देखी हैं अपनी नौकरी में भी और मुख्तलिफ जगहों पे, जो भी काम करना होता है उस काम का पहले नेगेटिव पहलू सोचना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव पहलू को सामने रख के उस काम को करने से बिदक जाते हैं, वो रुक जाते हैं, कहते हैं करो ही ना. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आपके पास बजट भी होता है, आप कहते हैं जो जी इंज करता तो ऑडिट पैरा बन जाएगा, मैं तो रिटायर होना ना, मैं ऑडिट पैरे मेरे भुगतांगा, मैं कुछ करो ही ना जी, खर्चा ही ना करो, बैठे. ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ, आप सवाल करेंगे तो मैं आपको लाइफ में एक दो मिसालें भी दूंगा कि उससे क्या नुकसान होता है. कि व्हेन यू डोंट टेक रिस्क, आप रिस्क लें, और रिस्क लेते हुए कैलकुलेटेड रिस्क होती है. आप जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फाइलों के ऊपर, कागजों में, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है. एंड द जस्टिफिकेशन शुड ऑलवेज बी पब्लिक इंटरेस्ट, कॉलेज इंटरेस्ट. कॉलेज इंटरेस्ट में आप लें जो फैसला साजी में आप थोड़ी बहुत एंथुजियाज्म, लीडरशिप चीज हो. और आखिरी चीज शेयरिंग इंफॉर्मेशन. डोंट बी सीक्रेटिव इन ए कॉलेज. इन ए कॉलेज यू शुड ऑलवेज, जो भी कोई बड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन हो which is likely to impact the college atmosphere or college education, that you should share with the faculty. और ये भी सोचना चाहिए कि मैं किस हद तक स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूं और स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को साथ लेके चलूं. तो आपको बहुत सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी चाहिए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब इसको मैंने कहा, इस स्लाइड को मैंने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर है ये स्लाइड. अब मैं फोकस करने लगी हूँ कॉलेज पे. पहले भी मैं कॉलेज पे कर रहा था लेकिन अब मैं ज्यादा क्लोज. और कॉलेज की इंटरनल मैनेजमेंट विद इन द कॉलेज, कॉलेज की इंटरनल मैनेजमेंट में व्हाट डू आई एक्सपेक्ट इन माय व्यू, इन माय एक्सपीरियंस, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ. और ये इसलिए मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि जो मैं 4 साल रहा हूँ कॉलेज का लेक्चरर, खासतौर पर जब मैं गॉर्डन कॉलेज में था, और तो मुझे वो मरूम प्रोफेसर एक ख्वाजा मसूद थे, फौत हो चुके, वो लेके आए थे मरी से, क्योंकि वो कहते थे मुझे आई नो यू कैन टेक, आपका सारा कैरियर ऐसा है कि यू कैन टेक दी एमए इंग्लिश क्लासेस. और मैं एमए इंग्लिश क्लासेस भी लेता था वहाँ पे, बीए के अलावा बीए बीएससी की भी क्लास, एमए इंग्लिश की भी क्लास. तो वो मुझे पता है. वो प्रिंसिपल जो उनके बाद भी जो आए वो ट्रांसफर हुए, तो जैदी साहब आए मैथमेटिक्स के, उनका भी मुझे आया. सो यू नो दे वर बोथ गुड प्रिंसिपल्स. वो क्या करते थे, तो इसलिए मैं आपसे अपने कुछ तजर्बे और कुछ अपना मैनेजमेंट नॉलेज, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ. तो कॉलेज की जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें द प्रिंसिपल शुड हैज हिज फोकस शुड बी कंप्लीट ऑन एजुकेशन एंड टीचिंग. आपका पहला काम जो है कॉलेज का, पहला मकसद जो है कॉलेज का, वो इट इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स कम टू बी टॉट एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स teachers to teach the students, and you as a principal have to make sure that this purpose of the college is being served. College का जो focus education और teaching पे है, students are getting educated and teachers are teaching, इसके ऊपर आपका मुकम्मल फोकस होना चाहिए. इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. वो जो मैंने बात की ना इंटेग्रिटी की और सारी, you should make it very clear that ये क्लासरूम
का टाइम पे शुरू होना और उसमें पढ़ाई होना, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि गपशप लग रही हो, दैट इज योर प्राइम पर्पस, और वो बहुत जरूरी है। नंबर 2, तो इसके लिए आपको कॉलेज को चलाने के लिए ये भी जरूरी होता है कि आप सबसे ऊपर बैठे होते हैं, आपको कहा जाता है कि एकेडमिक स्टाफ की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करें, ACR जैसे कहते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करें, और वो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी आपको फेयर करनी चाहिए, बैलेंस्ड करनी चाहिए। उस बैलेंस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए मैं आपके पास एक आइडिया छोड़ के जा रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट के फॉर्म्स में नहीं लिखा हुआ। उस आइडिया को कहते हैं पीयर रिव्यू, और पीयर कहते हैं बराबर वाले आदमी को, अपने बराबरी वाले को। तो आप जो आपकी फैकल्टी और एकेडमिक स्टाफ है, उनका पीयर रिव्यू भी एक कराएं। और पीयर रिव्यू से मुराद ये कि उनको आप कोई ना कोई फॉर्म बना के दें और उनको कहें कि आप कॉन्फिडेंशियली अपने कुलीग्स को रेट करें, इसके ऊपर अपने कुलीग्स को भी आप इवेल्युएट करें कि वो कैसे हैं 3-4 एरियाज में, बेसिकली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, पढ़ाने में, एकेडमिक लेवल में, इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक, जो 4-5 चीजें करवाएं। आप ये नोटिस करेंगे बजाय इसके कि आप अकेले बैठ के, क्योंकि मैंने ये भी नोट किया कॉलेजों में कि कई प्रिंसिपल्स को अगर 25 से 30 वहाँ स्टाफ मेंबर्स है तो उसमें से 5, 6, 7, 8 ऐसे खुशामदी किस्म के होते हैं, चूना लगाने वाले। वो प्रिंसिपल को बचूना ही लगा लोगों के अपनी ACRA फर्स्ट क्लास होती हैं, और बहुत से ऐसे अच्छे होते हैं आउटस्टैंडिंग जो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते वो खुशामद वाला, वो हर्ट होते हैं उस प्रोसेस में। वो प्रिंसिपल समझता है कि नहीं, ये जो मुझे हर वक्त मेरे पास आते हैं, उठते बैठते, ये बड़े अच्छे हैं, तो वो जरा उनसे भी, मैं आपको यकीन करें, ये पीयर रिव्यू करवाएंगे तो उसमें आपको पिक्चर बड़ी क्लियर होगी। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इन दी इननेट ऑनेस्टी इन पीपल। व्हेन पीपल आर आस्क्ड, 30-40 लोग जो है, और ये फौज करवाती है, फौज में पीयर रिव्यू भी करवाया जाता है, और दुनिया में भी जो अच्छी मैनेजमेंट से पीयर रिव्यू करवाया जाता है। इवन आपके जो स्टाफ, कॉलेज में मैं फैकल्टी मेंबर भी रहा हूँ लाहौर में, जो ग्रेड 20 की जहाँ अफसरों की ट्रेनिंग होती है, और कोर्स भी किया है, वहाँ भी पीयर रिव्यू जो कोर्स कर रहे हैं उनका भी करवाया जाता है कि आप बताएं कि ये 60 लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनमें आपके ख्याल में रैंकिंग करके दें, आधा कोर्स गुजर गया ना, और आखिर में भी दोबारा रैंकिंग कराते हैं। उससे पता चल जाता है कि कौन लोग दूसरों से ऊपर है, बेहतर है, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये मैं आपके पास एक आइडिया छोड़ के जा रहा हूँ। आपने कोई सवाल किया तो आई विल बी एबल टू टॉक। देन प्लीज ऑल्सो हैव एन इंटरनल एग्जाम सिस्टम। आप सिर्फ इस बात का इंतजार ना करें कि बोर्ड का एग्जाम होगा और उसमें सडनली आपको कुछ शौक होगा, यार ये ना पहला रिजल्ट आ गया मेरे कॉलेज का। तो आपको कोई ना कोई इंटरनल एग्जाम सिस्टम भी अडॉप्ट करना चाहिए विद इन कॉलेज, सो दैट students and teachers are pressured to prepare for the ultimate board examination या university examination। और उस इंटरनल एग्जामिनेशन की कोई इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए आपको, चाहे वो उनकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग्स में नहीं शामिल हो सकती, लेकिन आपको उसमें लोगों को ऑनर करना चाहिए, को प्राइजेस देने चाहिए। उससे एटलीस्ट आपको फीडबैक मिल जाएगा कि आपके स्टूडेंट्स कितने पानी में हैं और पढ़ाई में अभी कितना मार्जिन है बिफोर द यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम। फिर अगली चीज जो इसमें मैंने लिखी है इंटरनल कॉलेज मैनेजमेंट में, कॉलेज बिल्डिंग, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। जितनी भी थोड़ी आपके पास रिसोर्सेज, टेक केयर ऑफ इट। फाइंड पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प, यूज देयर हेल्प ऑल्सो। आपको यानी मालियों के साथ इंटरेक्ट करके एनवायरनमेंट को, यहाँ पंजाब में खास तौर पे बेशुमार गुंजाइश है टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। सीजनल फ्लावर्स है, सारा साल कोई ना कोई सीजन, फलदार दरख्त लग, घास है, कई चीजें हैं जो माली कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत आप उनमें इंटरेस्ट और थोड़ा बहुत उनको आप इंकरेजमेंट दें, आप उनको शाबाश दें। और इस तरह कॉलेज बिल्डिंग और प्रॉपर्टी भी यू शुड बी आपकी नजर में होनी चाहिए, आपको फिरते होना चाहिए, उसकी सफाई, उसकी देखभाल, वो आपकी, क्योंकि आपके पास मैन पावर होती है कुछ ना कुछ, और थोड़ा बहुत ना बजट भी होता है। एंड देयर आर पीपल अराउंड दैट कॉलेज इन सोसाइटी हु आर विलिंग टू हेल्प अ लिटिल बिट, जो कि कैश की बजाय वो आप अगर उनको वो कहे जी मदद चाहिए आपके यहाँ, यार ये इस तरह ये काम करा दें, so you can just to improve the environment so that people who enter a college, they should feel welcome, they should feel
impressed कि this is a good place, ये well maintained place है. और फिर अटेंडेंस, कॉलेज की इंटरनल मैनेजमेंट में स्टाफ और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो तो मैंने पहले ही कंप्लीट फोकस ऑन एजुकेशन, और आखिरी भी आप समझ लें ये एक ही चीजें हैं. Until the staff and students will not come, and until they will not go to the class, and until this teacher will not teach in the class, then उस कॉलेज का मकसद फौत हो जाएगा, वो कॉलेज का मकसद कोई नहीं देगा. चलें जी अगली स्लाइड पे चलें. नेक्स्ट स्लाइड में एक्सटर्नल कॉलेज मैनेजमेंट के एक्सटर्नल डायमेंशंस भी हैं. वो एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या हैं वो भी देख लें जरा. कॉलेज का बाहर की दुनिया से भी लगाव होता है, और उसमें एक तो वो यूनिवर्सिटी जिससे वो एफिलिएटेड है, या वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जिनसे वो एफिलिएटेड है, उनसे लिजाम रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है जी. मेरा रिक्वेस्ट ये होगी कि सवाल आप एंड पे छोड़ें, और दरमियान में लेक्चर में सवाल नहीं करेंगे. जब मैं ख़त्म कर दूँ आप अपने सवाल नोट करें, एंड के ऊपर वी विल हैव एम्पल टाइम. फिर आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रब्ता, और हायर एजुकेशन की हायरार्की में कॉलेज के दरमियान भी जो लोग हैं, आपका बहुत फ्रीक्वेंट रब्ता रहना चाहिए, सो दैट कोई ऐसी सरप्राइज अनप्लेजेंट डेवलपमेंट ना हो जिसके बारे में आपको टाइम पता ना हो कि जी ये अब फैसला हो गया. देन और फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं. फिर एक इंटरनेशनल वर्ल्ड भी है, एनजीओज की वर्ल्ड भी है. फिर फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं जो हेल्प करना चाहते हैं अपने डोनेशंस की मदद से. डोनर्स हैं जो पैसे देना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं कॉलेज की भलाई के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कोई लाइब्रेरी के लिए, कोई, या वो जनरली कहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, एनीथिंग. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. आप इसको अपने आप को एक कुएं में या एक जेल में मुकैयद चीज ना समझे. कॉलेज एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट, एंड द एनवायरनमेंट जो आउटर एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स द यूनिवर्सिटी जिसके एग्जाम्स आपके स्टूडेंट्स देते हैं, द बोर्ड जिसके एग्जाम देते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड द डोनर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट्स, एनजीओज जो हेल्प कर सकती हैं आपके कॉलेज में, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर से मुराद यही वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह होते हैं. बाज़ के भी प्रोग्राम हुकूमत की मदद से आते हैं. तो आपको इनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि हाउ कैन यू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स जो कि एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक या यूनिसेफ, यूनेस्को, ये काफ़ी इदारे होते हैं जो एजुकेशन में भी हेल्प करने को तैयार होते हैं. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. चैलेंजेस. अब ये सारे काम जो आपको मैं बता रहा हूँ ये स्मूथ नहीं होते, आपको चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. और चैलेंजेस तो यही समझना चाहिए, वो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा तुंदी ये बाद मुखालिफ से, तो चैलेंज होती है तुंदी ये बाद मुखालिफ, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए. यू शुड बी एन उकाब, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ तुंदी ये बाद मुखालिफ. हम सारी उम्र अपनी नौकरी में भी फेस करते रहे ये चीज़ें. अभी भी मैं जो एक दो कंपनीज में हूँ, खासतौर पर यहाँ हेल्थ वाली कंपनी में, वहाँ फेस करता हूँ. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल को मैंने कोट करके, तो पॉलिटिकल को आप नाजायज ना समझें, इसलिए कि वो कॉलेज एग्जिस्ट इन ए एनवायरनमेंट, इन ए तहसील, इन ए डिस्ट्रिक्ट, and there are MNAs and MPAs elected representatives who represent the people around it. और अगर वो थोड़ा बहुत आपकी तवज्जो चाहते हैं और आपसे काम को लेके आते हैं तो उनको आप इंटरफेरेंस ना समझें, और उसमें ठीक है उनके नाजायज काम आप मत करें जिससे किसी और का मेरिट हर्ट हो. नाजायज में उसे कहता हूँ, जायज उसको कहता हूँ जो करने में किसी और का हक नहीं मारा जा रहा, वो करें. लेकिन किसी और का अगर हक मारा जा रहा है वो काम ना करें. और लेकिन ये है कि उनको पोलाइटली डील करें. और फिर अगर वो आपने असूल अपनाया कि आप गलत मेरिट से हट के कुछ नहीं करते, तो फिर किसी और के कहने पे भी ना करें. फिर अपने किसी फैमिली मेंबर, दोस्त, यार, कोलीग, उसके कहने पे भी ना करें. अगर पॉलिटिकल बंदे के कहने पे आपको गलत काम नहीं कर रहे तो किसी और के कहने पे भी ना करें, सो दैट वो जो इंटेलेक्चुअल मैं बात कर रहा हूँ ना इंटेग्रिटी की, वो आपकी एश्योर्ड हो. और ठीक है फिर आस्ता आस्ता आपकी शोहरत होगी कि यार प्रिंसिपल साहब ना गलत काम नहीं कर, किसी का भी गलत काम नहीं कर, फिर वो बर्दाश्त कर जाते हैं जो लोग ये पॉलिटिकल. लेकिन उन्हें पता चले कि आपने फलाने का तो कर दिया अंदर खाते, उनका काम नहीं किया, दैट इज व्हाट मेक्स द प्रॉब्लम.
लिहाजा उसको बर्दाश्त करें, वो पार्ट ऑफ द जॉब है, उसको चैलेंज के तौर पर। फिर दूसरा चैलेंज जो मुझे नजर आता है, जो मेरा तजर्बा भी है, इन डिफरेंस ऑफ स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट, कि आपके अंदर जितना मर्जी एंथुजियाज्म हो, जज्बा हो, आपको कभी कभी फील होगा कि आपके ज्यादातर स्टाफ मेंबर्स और तालिब इल्म भी जो हैं वो लाताल्लुक हैं, वो आपके जज्बे को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करे जितना आपका जज्बा है काम करने का और करवाने का। और यही हुकूमत में आपको नजर आएगा कि ये आप वो इनडिफरेंट और आपको उनके पीछे करना पड़ेगा। फाइन, ये भी एक चैलेंज है, इसको भी टेक इट एज अ चैलेंज कि जो लोगों की लाताल्की है कॉलेज के बारे में, उसको भी आप चैलेंज के तौर पे लें और उससे मायूस ना हो। फिर तीसरी चीज जो आपका चैलेंज है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये भी मैं एग्री करता हूँ कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, बात कॉलेज के अंदर भी कई मसाइल आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको जो मैंने पहले बात की, आप कम से कम ये देखें कि ये गिलास बजाय इसके कि आप सोचिए आधा खाली है, आप कहिए आधा फुल है, कि कुछ है तो सही ना इसके अंदर गिलास में। उसी को लिमिटेड को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये ज़हन में आता है। रिसोर्सेज हर जगह लिमिटेड होते हैं। रिस्पॉन्स, मेंटेन एंथुजियाज्म, एनर्जी लेवल, वो जो इंडिफरेंस की मैंने बात की ना, कि उसके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंडिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड गवर्नमेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज, इन चीजों के होते हुए आपकी रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए? यू शुड मेंटेन योर एंथुजियाज्म। आपको इन चीजों को, अपने आप को ज़हनी तौर पे डिफीट नहीं करने देना चाहिए। आपका एनर्जी लेवल, काम करने का लेवल भी और एंथुजियाज्म आपका बरकरार रहना चाहिए इन सारी मुश्किलात के बावजूद। तो असल लीडर वही होता है कि जो मुश्किलात से घबराता नहीं है और जो मुश्किलात पे काबू पाने के लिए या उन मुश्किलात के बावजूद वो अपना काम करता है। और आपका रिवॉर्ड क्या है? अगली लाइन में मैंने लिखा है, आपको इनवर्ड कंटेंटमेंट एज रिवॉर्ड सीख करना चाहिए। कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जब खुद नोट करेंगे, इफ यू आर अ गुड मैन, कि आपको रोज शाम को अंदरूनी तस्कीन होगी कि मैंने अपना काम पूरा किया। तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देखिए, वो अल्लाह ताला भी कहता है कि आपकी जो इस्तिताअत है, इस्तिताअत इंक्लूड्स आउटवर्ड चैलेंजेस, रिसोर्सेज, आपकी अपनी ताकत, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पूरा काम हो, उसका आपको एक मुतमिन होने के सेंस में भी, कंटेंटमेंट कहते हैं मुतमिन, इत्मीनान होना, और आपके ज़मीर भी आपका मुतमिन आपको करेगा। वो अपना एक रिवॉर्ड है, अपना एक रिवॉर्ड है। वो तो तनख्वाह के अलावा ये एक रिवॉर्ड है कि आप मुझे कहते हैं कि मैंने हार्ड वर्क किया है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, ठीक है। और फिर कोशिश करें, आखिरी जुमला मेरा ये, क्रिएट आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, कि आपको लोग जो कॉलेज में आए, स्टूडेंट्स भी और विजिटर्स खास तौर पे, उनको ये लगे कि आपने एक बहुत अच्छी जगह क्रिएट की हुई है। एक, चाहे बाकी इंस्टीट्यूशंस और बाहर का माहौल जैसा भी है, आपने कॉलेज के अंदर एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया। ठीक है जी, लेट्स गो अ लिटिल बिट फर्दर। सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी मेरा आपको एक मशवरा है कि कॉलेज के अंदर कोई ना कोई सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जरूर रखें। उसकी मैं रीजन आपको इसी स्लाइड से समझाता हूँ। एंड दैट सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट should be separate for students, separate for academic staff, and separate for sports staff. और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम है। एंड रिवॉर्ड सिस्टम में आइडेंटिफाइंग एंड ऑनरिंग बेटर परफॉर्मेंस, उनको recognition दें, प्रेज दें। प्रेज एंड recognition इज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। आप वक्तन फवक्तन अपने कोई जो बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई ऑनर से रिवॉर्ड करें, अपने स्पोर्ट्स स्टाफ को ऑनर से रिवॉर्ड करें, जिससे उसका सर ऊंचा हो और दूसरे के यार अच्छा मैं भी काम करूंगा तो मेरे भी। आप कई कॉरपोरेट सेक्टर में देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में, कि वो हर महीने वो किसी ना किसी उसकी तस्वीर लगा देते हैं और लिखते हैं कि ये पिछले हमारे जो महीना गुजरा है, उस महीने का सबसे बेस्ट जो है वर्कर ये था, और हमने इसको ऑनर करने के लिए ये इसकी तस्वीर और उसका नाम यहाँ लगाया है। तो जो भी आते जाते हैं वो देखते हैं यार। दिस इज व्हाट आई जस्ट डोंट मीन कि उसको कोई पैसे दे दे, उसे इस टाइप का रिवॉर्ड। रिकग्निशन, रिकग्निशन इज आल्सो
ऑनर करना, रिकग्नाइज करना कि यू हैव डन गुड, और दूसरों को डिस्करेज करने की बजाय वो इनकरेज करता है कि अच्छा फिर हम भी करेंगे तो ठीक, एंड तुमको आइडेंटिफाई करके ऑनर करें. दैट वर्क्स एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फॉर अदर्स टू. पनिशमेंट, आखिरी जो मैंने जुमले, पनिशमेंट हमारे कल्चर में बहुत आसान नहीं. इन आवर कल्चर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पनिश समबडी. उसको थोड़ी बहुत झाड़ झूड़ या एक डिस्प्लेयर कन्वे कर देना वो भी काफी. और इसलिए पनिशमेंट आप बहुत कम दें, कभी कभी दें, और सिर्फ किसी ऐसे बंदे को दें, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे आपका सपोर्ट स्टाफ हो, जो कि वाकई बहुत, जिसने गड़बड़ काम किया हो, बहुत गलत कुछ किया हो, वेल डिजर्व हो, और वो एक्सेप्ट करे हाँ ये मैंने किया, मान जाए इस बात को. दैट इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट. तो मेरी ये स्लाइड का मकसद ये है कि ज्यादा दारोमदार आपका होना चाहिए टू रिकग्नाइज गुड पीपल एंड ऑनर देम, and also recognize them, praise them, and that will be a positive reinforcement. उसको मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कहते हैं, you should be relying in a college atmosphere on positive reinforcement rather than कि punishment के थ्रू आप कुछ कराएं. ठीक है जी. Feedback, complaints, grievances. I think in a college this is very important. Anybody who has a complaint, उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कंप्लेंट करूं और मेरी कंप्लेंट फिर प्रिंसिपल तक पहुंचेगी. यू शुड डेवलप ए सिस्टम. कोई कंप्लेंट डेस्क या विंडो आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर्स के ऊपर भी हो सकती है, विच शुड बी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रिंसिपल. दरमियान में चाहे आप किसी को लगाए ट्रस्टवर्दी बंदे को कि वो निकाल के आपके सामने पुटअप करे और रेगुलरली पुटअप करे, लेकिन आप उसको खुद देखें, और ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस्म की कंप्लेंट्स डेवलप हो रही है. उसको आप बर वक्त उन कंप्लेंट्स को एड्रेस. एक और तरीका है ये जानने का कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जाना हुआ है कि यू, इफ एज अ प्रिंसिपल यू कीप एन ओपन डोर पॉलिसी, एंड बाय ओपन डोर पॉलिसी आई मीन द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ शुड नो कि दे कैन go to your office, open the door, and if you are free they can talk to you. इस चीज को आप इनकरेज करें. आप वो जो दफ्तर का टाइम है ना फाइलें निकालने का, वो आधा पौना घंटा लेता कहीं ढूंढ के, बाकी आप अवेलेबल हो. और एक और तरीका ये कि दफ्तर में बैठने की बजाय आप रैंडम चेकिंग करें. रैंडम चेकिंग इज डन बाय रोमिंग. रोमिंग मीन्स आप वॉक अबाउट इन द कॉलेज. जो मैं गॉर्डन में दो प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, वो दोनों ऐसे करते थे. ख्वाजा मसूद साहब भी ऐसे करते थे, अजहर साहब भी ऐसे करते थे. तो इसलिए मुझे टीचर ये फिक्र होती थी कि मैं क्यों, और वो बरामदे में नजर आते थे. गॉर्डन कॉलेज में मैं पढ़ाता था ना, गॉर्डन कॉलेज में बरामदे में फिरते हुए ना, क्योंकि वो ही ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर कि बरामदों के अंदर और स्टूडेंट शोर ना करें. मौसम ऐसा होता था और इतने इंग्लिश पढ़ने का तो नंबर भी बहुत होता, स्टूडेंट्स 80, 90, 100 भी होते थे कि हमें वो बाज वक्त खिड़की शिड़की खोल के रखनी पड़ती थी. लेकिन अगर बरामदे में कोई शोर हो तो फिर डिस्टर्ब हो. आप भी ख्वाजा और उस रोम अराउंड से उनको नॉलेज होता था फर्स्ट टाइम, तो कौन क्लास ले रहा है, बाकी पढ़ा रहा है, या उधर सिर्फ लतीफे ही सुना रहा है, या व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, किस क्लास में. तो उसको और कम्युनिकेशन भी जब आप फिरते हैं एज अ प्रिंसिपल, तो आप स्टूडेंट्स भी जो फिर रहे होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि अच्छा अभी क्या हाल है, क्या आजकल क्या हो रहा है, ये वो, अब इस वक्त क्लास में क्यों नहीं, आपकी फ्री क्लास है क्या है. और स्पोर्ट्स स्टाफ वही सफाई करने वाले, गार्ड्स, माली, पीएन्स, नायब कासद, ऑल दीज पीपल, इनके साथ भी आप इन टच रहें. उससे आपको बहुत कुछ पता चलता रहता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉलेज. जो प्रिंसिपल एक लीडर है, उसके नॉलेज में होना चाहिए कि मेरे कॉलेज में क्या हो रहा है. और ये जो मैंने फीडबैक सिस्टम आपको कहा ना, ये फीडबैक सिस्टम में आपके पास जो जेन्युइन कंप्लेंट्स आपको नजर आए, उसका रिड्रेसल भी आपको करना चाहिए. अगर आप रिड्रेसल नहीं करेंगे, सिर्फ लोग कंप्लेंट करेंगे और कंप्लेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं नजर आएगा उनको, तो देन यू नो पीपल विल फील कि ये जो सिस्टम है ये जाली सिस्टम.
वॉशरूम भी होते होंगे, जब ऐसी कंप्लेंट आती है कि वॉशरूम की सफाई नहीं है, ये नहीं है, मेक श्योर दैट दे आर क्लीन और खुद जाके चेक कर लें, या और उनको कोई प्रॉब्लम नजर आता है, कोई कैंटीन की क्वालिटी फूड का प्रॉब्लम आता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली होते हैं कैफेटेरिया कैंटीन, तो ये चीजें आप एड्रेस करें और आप उनको नजर आए कंप्लेंट करने वाले को कि द प्रिंसिपल इज टेकिंग नोटिस ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि और जो काम कर सकें जिसमें प्रॉब्लमली रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो, वो कंप्लेंट करने वाले को कम्युनिकेट करें। ये इस वजह से हम ये करने में अभी कासिर है, ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्स से उन्हें पता चले कि मेरी कंप्लेंट रद्दी की नौकरी नहीं है, ये कोई ना कोई एड्रेस कर रहा है इसको। अकाउंटेबिलिटी का एक वर्ड बड़ा है ना, ये बहुत एक कॉमन टर्म है, आगे गवर्नेंस की स्लाइड में भी है। तो अकाउंटेबिलिटी इंटरनल को मैं कहता हूँ, यहाँ मैंने ये स्लाइड खुद एहतसाबी, उर्दू का वर्ड है खुद एहतसाबी, कि अपना एहतसाब आपको खुद करना है। कॉलेज में किसी ने बात से आपका एहतसाब, आपने अपना एहतसाब कि मैं एज अ कॉलेज क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा, वो आपने करना है। इट्स एन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, यू हैव टू अपील, इट इज एन अपील टू योर ओन कॉन्शियस, आपका ज़मीर वो आपको बताएगा, खुद घंटी जाएगा, वो कहता हाँ यू आर डूइंग ओके, आप जितना आपके दमखम है अपने। आप एक और भी अप्रोच ले सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ओके यू नो द गवर्नमेंट इज पेइंग यू टू डू ए जॉब, आपको प्रिंसिपल के तौर पे गवर्नमेंट एक सैलरी दे रही है, तो ये भी एक खुद एहतसाबी है कि आप जिस काम की सैलरी ले रहे हैं वो काम आप बखूबी अंजाम दें। दिस इज ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है, आप गवर्नमेंट ये तो नहीं कह रही है आप खुदा वस्ते का काम करते और प्रिंसिपल लगते, गवर्नमेंट आपको एक सैलरी भी दे रही है, गवर्नमेंट आपको एक स्टेटस दे रही है, एक ग्रेड दे रही है, सो यू नो दैट इज ऑल्सो इट्स इनकम्बेंट अपॉन यू कि आप अपना जॉब ठीक तरीके से करें, बिकॉज यू आर बीइंग पेड टू डू जॉब। तो नॉट डूइंग इट, अगर आप नहीं करते तो पुट्स अस इन अ सर्टेन कैटेगरी। उसका मतलब ये है कि फिर हम यानी मैं यहाँ वर्ड्स वो यूज नहीं मैंने किए हुए, बट बेसिकली हम अगर तनख्वाह भी हमें मिल रही है और एक ओहदा हमें मिला हुआ है और उसके अंदर पूरी तरह हम काम नहीं कर रहे, तो फिर वो हम एक ऐसी कैटेगरी में चले जाते हैं जिसको आप काम चोर कह लें, या वो भी एक बेईमानी की कोट अनकोट कैटेगरी आ जाती है। हम अपनी जॉब के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे, दिस इज व्हाट आई मीन टू से, एंड दैट इज अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन। ये इंप्रेशन किसी को नहीं होना चाहिए, ना हुकूमत को, ना वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ना वहाँ जो स्टाफ है, कि जो प्रिंसिपल है हमारा, ही इज नॉट फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको दी गई है, ठीक है जी। और ये रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए और इसके लिए आप सेंसिटिव होने चाहिए, और एंड यू शुड सेट एन एग्जांपल दूसरों के लिए भी। आप लीडरशिप डिमांड करती है कि आप अपने ऊपर अच्छा खासा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नाफिज कर रहे हैं और उसको निभाएं, और सो दैट कोई भी स्टाफ में से या कह ना सकेगा जी ये तो आप खुद ये नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आज बाज़ अफसोस भी करता हूँ मैंने ये बात क्यों की। मैं जब खुद एमए इंग्लिश में पढ़ रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहा था ओल्ड कैंपस में 1973-75, 2 साल, बहुत पुरानी बात। तो उसमें वो कोई उसमें कुछ देखें, कुछ ऐसे टीचर्स थे जो रोज आते थे और सारा घंटा पढ़ाते थे, बल्कि एक तो टीचर ऐसी थी लेडी टीचर, वो इतनी मेहनती थी कि वो अपना पीरियड रखवाती थी रिसेस से पहले, कहती थी मुझे ये सेशन दें। वजह ये कि अगर वो अपनी रॉ में पढ़ा रही है, पूरा घंटा गुजर गया तो वो रिसेस के 10 मिनट भी खा जाती थी। उस वक्त हमें बुरा लगता था, लेकिन हमने आस्ते आस्ते रियलाइज किया लाइफ में कि वो बहुत जबरदस्त टीचर है, और उसके पीछे पीछे भी हम उसको आज तक ऑनर करते रहे। वो रिटायर हो गई हुई है। उसके मुकाबले में एक दो और टीचर्स ऐसे थे, उनकी आज तक हमारे ज़हन में रिस्पेक्ट नहीं, हालांकि वो हमारे बड़े दोस्त बने हुए थे और पढ़ाई, लेकिन वो आते थे, कभी को नोट्स दे दिए, घंटे में से 20-30 मिनट पढ़ाया, फिर निकल गए। और एक टीचर ने तो पता नहीं क्या वहाँ क्लास में बात की,
तो मैंने उसको कह दिया क्लास में, मैंने कहा जी आप भी तो रोज नहीं आते। उसने कोई किसी में से या मुझे या किसी को कहा, मैं तो खैर रेगुलर अटेंड करने वाला था, कि फलाना आपका कैंडिडेट है वो तो रेगुलर ही नहीं है, क्योंकि वो वहां पे डिपार्टमेंटल इलेक्शंस भी होते थे, यूनियन इलेक्शंस भी जमाने में। तो हमने डिपार्टमेंटल इलेक्शन में अपना जो कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था वो जरा रिलैक्स था, वो रेगुलर नहीं था। तो लेकिन हम उसके सपोर्टर थे, तो वो टीचर ने उसको जब पॉइंट आउट किया क्लास में, क्योंकि वो मुझे शक था वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रही है टीचर, लेडी टीचर, तो मैंने उधर क्लास में उसके मुंह पे कह दिया, मैंने कहा जी ये हमारा जो कैंडिडेट है ये रेगुलर नहीं है, तो आप कौन सी रेगुलर है, आप भी रेगुलर नहीं है। उसने बड़ा माइंड किया, वो निकल गई टक 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 क्लास से और बड़ी खपशप उधर डिपार्टमेंट में रही, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि फैक्ट यही था कि वो 30-40% ऑफ द टाइम क्लास ही नहीं लेती थी, लेती भी थी तो घंटे में से 30-40 मिनट पढ़ाया चली गई। ठीक है, सो यू नो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सेटिंग एग्जांपल। आप अपनी एग्जांपल सेट करें, आप टाइम पे आए और सारे लोग जब चले जाए कॉलेज बातों कर जाए, और नजर रखें चीजों के ऊपर, फिर आपको आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको ऑनर करेंगे। मैं बचपन में मुझे ऐसे टीचर्स याद हैं जो बियॉन्ड द कॉल ऑफ देयर ड्यूटी जिन्होंने हमारे ऊपर टाइम लगाया, और हमारे जो एनुअल फंक्शन में ड्रामा पोएट्री ये चीजें करने पे वो शाम तक बैठे रहते थे। वो टीचर्स मुझे नहीं भूलते अभी तक, और उन्होंने हमारी किरदार साजी में, कैरेक्टर बिल्डिंग में एक रोल प्ले किया। उसके मुकाबले में वो टीचर जो बस चल चलाओ थे, ठीक, वी रिस्पेक्टेड दैट, बट वी नेवर रिस्पेक्टेड दैट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट्स। तो ये मेरा मशवरा आप जरा ज़हन में जरूर रखें अगर आप प्रिंसिपल हैं तो। ये दोबारा मैंने आपको मॉनिटरिंग सिस्टम में ये कहा है, पीयर रिव्यू। मॉनिटरिंग सिस्टम में आप सिर्फ इधर उधर की बातों पे डिपेंड ना करें। स्टाफ का जहां तक मामला है ना, वो पीयर रिव्यू कराएं आप, कोई माइंड नहीं करेगा, बल्कि दे विल थिंक इट इज फन, एंजॉय करेंगे। आप 30-40 आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, 25-30, उनको कहें कि यार आप ये फॉर्म है, इसके ऊपर आप अपने कोलीग्स को रैंक करें और अपने आप को भी बीच में रैंक करें आपके ख्याल में, और ये इन 3-4 एरियाज में रैंक करें, ठीक है। और वो आपको एक जनरल इंप्रेशन, आपको पता चलेगा कि जो अच्छे हैं ना, ज्यादातर लोग उनको अच्छा कहेंगे। जो अच्छे होंगे अपनी पढ़ाने में भी, अपनी वो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में भी विद देयर कोलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ भी उनका, वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उनके कोलीग्स ही उनको हाई रेट कर रहे हैं, यार ये बेहतर है। रैंडम चेकिंग, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, रैंडम चेकिंग जब आप कॉलेज में फिर रहे हो और चेकिंग कर रहे हो, उसके बाद जब आप अपने कमरे में चले जाए तो डायरी जरूर मेंटेन करें, उसमें जो काबिल जिक्र चीजें आप रिकॉर्ड नोट्स रखें, ताकि 6 महीने साल बाद आपको वो उसको दिखे तो आपको पता होगा, भूलेंगे नहीं आप, यू विल नॉट फॉरगेट कि अच्छा ये मैंने देखी थी तो ये ठीक किया था। कीप नोट्स, और स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें। वहां चलते फिरते आप स्टूडेंट्स को मिलते रहें, स्टूडेंट्स के कोई ना कोई अब गैदरिंग हो उसमें जाए, उनको एड्रेस करें, उनके सवालों के जवाब दें। यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, गुड लीडर इज अ गुड कम्युनिकेटर। और बेसिकली वो स्टूडेंट्स के वजूद की वजह से कॉलेज का वजूद है, बाकी आप सब लोगों का वजूद डिपेंडेंट है ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। वो जैसे भी वो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। मेरे ख्याल में 2 एक स्लाइड्स और रह गई, देन आई विल बी। ये एक स्लाइड जो है, इसमें मैंने आपको 8 मेजर प्रिंसिपल्स जो दुनिया में माने जाते हैं गुड गवर्नेंस की, और ये सिर्फ कॉलेज की गवर्नेंस की बात नहीं है। गुड गवर्नेंस का जिसका ये टर्म का आपको बड़ा गलगला है, शोर है दुनिया में, तो देयर शुड बी गुड गवर्नेंस, कंट्री में भी, सूबे में भी, कॉलेज में भी, अदारों में भी। तो गुड गवर्नेंस के असूल क्या है? पहला असूल वही है वो जो कॉलेजियल वाला, गुड गवर्नेंस इज पार्टिसिपेटरी, इट इज नॉट डिक्टेटोरियल। वो ऊपर से डंडे के जोर से नहीं होती, वो मशवरे से होती है, इट इज पार्टिसिपेटरी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका कोविड को डील करने के लिए एनसीओसी बना हुआ है, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कमांड जो भी है, इट इज अ पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबको बुला के स्टेटिस्टिक्स शेयर किए जाते हैं, डिस्कस किया जाता है, और वहां से फैसले निकलते हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें, किस तरफ डिजीज जा रही है, हाउ टू डील विद इट। सो इस पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है। और फिर फॉलोज द रूल ऑफ लॉ,
गवर्नेंस जो है वो कानून को तोड़ के गवर्नेंस नहीं होती, कानून को वो अपहोल्ड कर। कानून ऑल्सो मीन्स को जो पॉलिसीज हैं, जो आपके कॉलेज की काउंसिल के रूल्स हैं, जो चीजें उनको फॉलो करें, ठीक है। इट इज ट्रांसपेरेंट, वो नजर आती है कि आप अच्छी ये ठीक हो रही है, छुप के नहीं होती। इट इज रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड, वो जो मैंने आपको फीडबैक सिस्टम को रिस्पॉन्ड करती है अगर कोई इशू है या कोई हालात जैसे हैं उसको रिस्पॉन्ड करो। इट इज कंसेंसस ओरिएंटेड, वो कोशिश करती है कि जो फैसले कॉलेज में किए जाए वो मिलजुल के किए जाए, कंसेंसस से किए जाए। फिर इट इज नंबर 6 लिखा है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, उसमें किसी को फेवर नहीं किया जाता, बराबरी की बुनियाद पे स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी डील किया जाता है, स्टाफ को भी। एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स के सबको इंसान समझा जाता है, सबको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, और उससे जो काम आप करने आए हैं विच इज एजुकेशन, कॉलेज में मैंने कहा फोकस, वो आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे हैं, चाहे जिस मर्जी लेवल का कर रहे हैं, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में भी आप जहाँ लें। एंड इट इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन कि अगर वो ऑडिट वगैरह तो वैसे ही होना है, अकाउंटेबिलिटी का अकाउंट्स से वर्ड निकला है। दूसरी अकाउंटेबिलिटी आपकी इधर है, इंटरनल, कि आप अपने आप से खुद पूछते हैं कि मैं अपना जॉब ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। आई थिंक एक आखिरी स्लाइड है, उसके बाद आई विल बी ठीक ठाक, आपको आधा घंटा मिल जाएगा। ये दिस इज माय लास्ट स्लाइड। ये जो मैंने आपको क्वालिटीज ऑफ लीडर और ये गुड गवर्नेंस की भी जो बातें हैं, इसका एक मिक्सचर है। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें दरमियान में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एज पेडागोजिकल, पेडागोजिकल मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड लीडर, a leader who is involved in pedagogy, in education। वो प्रिंसिपल की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है जी, इस स्लाइड के अंदर आपको वो नजर आएगी सर। और वो क्वालिटीज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग में फिर आपको, अगर आप पहले शुरू से ले लें ऊपर से, ये जो ऑरेंज कलर की है, इज अ गुड कम्युनिकेटर। फिर आप राइट पे आ जाएं, इज रिस्क टेकर, अगली इज एंथुजियास्टिक, फिर हैज इंटेग्रिटी, इज रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का वर्ड शायद मैंने पहले यूज नहीं किया, रिफ्लेक्टिव मींस कि वो सोचता है, रिफ्लेक्टिव का दूसरा मतलब है तदब्बर, तदब्बर करता है, वो चीजों के ऊपर सोचता है, तदब्बर करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, कैसे बेहतर हो सकती है। सो रिफ्लेक्शन, गौर व फिक्र, तदब्बर करना, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन का मतलब। अगला है इज इनिशिएटर ऑफ चेंज, वो जैसा कॉलेज उसको मिला है उस तरह ही नहीं छोड़ के जाता, वो कोशिश करता है उसको इम्प्रूव करे, चेंज करे उसे, चेंज फॉर बेटर, नॉट चेंज फॉर वर्स। फिर हैज विजन, लॉन्ग टर्म विजन। फिर शेयर इंफॉर्मेशन, सीक्रेटिव नहीं है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। फिर इज अ डेलीगेटर, डेलीगेट करता है, कॉलेज के जो स्टाफ हैं और दूसरे लोग हैं उनको वो अपनी ताकत शेयर करता है, कहते हैं ये आप करें, ये आप करें। इज कॉन्फिडेंट ऑफ अदर्स, कॉन्फिडेंट कहते हैं राजदान, दूसरे जो उसको कुछ बताने आना चाहते हैं वो उनको ये कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे से बात हो सकती है, अदरवाइज आपको सही सिचुएशन बताएगा कोई। कॉन्फिडेंट उसे कहते हैं कि आप इन कॉन्फिडेंस कोई बात बताना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप इनकरेज करते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट। गिव एडवाइस व्हेन रिक्वेस्टेड, और अगर कोई मशवरा भी लेने आता है फैकल्टी स्टाफ में तो फिर आप उसको ये नहीं कहते कि यार जो करना कर लो, नहीं, वो अगर आपको समझता है कि यू आर लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड लीडर इन कॉलेज तो उसको दें मशवरा, चाहे वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में आपसे मशवरा। तो ये अब ये देखें, मैं आपको एक मिसाल आखिरी दे के छोड़ देता हूँ, और वो मिसाल आपको जिसमें अगर आप एंथुसियास्टिक और आप फॉरन रिस्पॉन्सिव नहीं है तो व्हाट हैपेंस। आपको पता है कुछ अर्सा पहले मेयो हॉस्पिटल, मेयो कॉलेज में, लाहौर के मेयो कॉलेज में एक टीचर ने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए कि उसके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और वो इन टाइम ना प्रिंसिपल ने नोटिस लिया, ना वो जो कमेटी बनाई थी उन्होंने भी इन टाइम जो भी करना था करके प्रिंसिपल को भेज दिया, प्रिंसिपल साहब 2 महीने बैठे रहे उसको ले। तो दिस इज व्हाट हैपेंस if the principal and the people who are around him, if they are not responsive, if they are not informed, well informed, these are the accidents which can happen. I
होप ये आप सब लोगों को ये इंसिडेंट पता है, यू नो दैट। तो ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं, और इसके बाद हमें हमारे पास ठीक ठाक 30 मिनट हैं, देन आई एम अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस। आप जब सवाल करें तो मुझे अपना नाम भी बता दें कि, और ये भी बताएं कहाँ काम करते हैं, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। ठीक है जी? जी जी जी। डॉक्टर, 3 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, कोई हम कौन बोलना चाहते हैं, बोलें आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। नदीम फयाज बात कर रहा हूँ, असगर खान कॉलेज रावलपिंडी से। बात कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बहावलनगर से सर। डिग्री कॉलेज भावनगर से कौन? अमजद साहब है या नदीम साहब? जी अमजद अली सर। चले आप पहले बात कर लें। अमजद साहब पहले कर लें, फिर नदीम साहब, इसके बाद आप कर लीजिएगा। जी जी, अमजद साहब। जी सर, बहावलनगर से सर बिलोंग करता हूँ। तो सर आपने प्रिंसिपल की बहुत सारी ड्यूटीज के बारे में बताया, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, बहुत खुशी हुई। लेकिन एक सर उनकी ड्यूटी ऐसी है जो मैं कई प्रिंसिपल से भी डिस्कस कर चुका हूँ, और मुझे सिर्फ अपने ही कॉलेज में नहीं, पूरे पंजाब के कॉलेज में उसका कोई हल नजर नहीं आता। और सर वो ये है कि हम बिल्डिंग आते हैं, दर्जा हरम के मुलाजिम हैं, क्लर्क हैं, इतना कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन सर हमारे पास जो बच्चे हैं वो तकरीबन 4 महीने के लिए बड़ी हार्डली आते हैं। अकेडमीज खुली हुई हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे चले जाते हैं। एक तो हमारे पास जो स्टाफ आता है, बच्चों का स्टाफ होता है, वो इंतहाई पुअर होता है। उनमें से कुछ बच्चे जो पोजीशन होल्डर होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं इस शर्त पे हमारे पास एडमिशन करवाते हैं बच्चों का कि आप इनको इजाजत देंगे, ये घर बैठ के या अकेडमी में तैयारी कर लेंगे, कॉलेज में नहीं आएंगे। अब अगर प्रिंसिपल इस बात पे एग्री ना हो तो कॉलेज के लिए एक अच्छा स्टूडेंट जो है उससे महरूम हो जाते हैं। अच्छा सर, अब हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा इनको फाइन कर देता है कि अगर आप नहीं आएंगे तो फाइन हो जाएगा। जब दाखिले जाने लगते हैं तो वो स्टूडेंट जो होता है वो फाइन पे कर देता है। हम सब टीचर बहुत अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास आता ही नहीं। पहले महीने में हाजिरी कोई 90% होती है, अगले महीने में 80% होती है, 3 महीने के बाद तकरीबन हमारे पास 10% स्टूडेंट बैठे होते हैं। हम किसको पढ़ाएं? इस बारे में प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या बनती है, ये काइंडली जरा पूरे पंजाब के कॉलेजेस का मसला है। थैंक यू सर। ये देखें, ये देखें, मैं ये नहीं मानता पहली बात कि ये पूरे पंजाब के कॉलेजेस का मसला है। सुन लें मेरा जवाब, सुन लें। दूसरी बात ये है कि वो जो अकेडमीज हैं जो जहाँ जाते हैं वो मुफ्त पढ़ाती हैं, और गुर्बत इतनी है कि वो लोग फीसें किस तरह देते हैं उन अकेडमियों की, और वहाँ पढ़ाते कौन लोग हैं? ये तो नहीं है कि आपके अपने कॉलेज के लोग वहाँ पढ़ा रहे होते हैं जाके शाम को। तो ये देखें, बात ये है कि आपके कॉलेज में तो वर्चुअली फीस ना होने के बराबर है ना, फ्री है। और अगर वहाँ आप क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो अकेडमियों में के अंदर क्यों जाएंगे लोग? आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है या FC कॉलेज है, इसके लोग जाते हैं अकेडमियों में? तो ये सारे पंजाब का ये मसला नहीं होगा। आप इन 2-3 यहाँ तो मुझे बताएं कि जी वो अकेडमियाँ मुफ्त है, वहाँ क्यों फीस देते हैं जाके? उनके पेरेंट्स क्यों तैयार हैं कि जी वहाँ फीस दें? वाई? इसलिए ये मैं नहीं मानता। अगर आप वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और मुफ्त दे रहे हैं तो वाई वुड दे गो टू दी अकेडमीज? और अगर कुछ चले भी जाएं उधर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम, मुजीबुल इस्लाम बोल रहा हूँ सर, साइंस कॉलेज वादर रोड लाहौर से। ये पहले नदीम साहब बात कर रहे थे, नदीम साहब पहले आते थे। नदीम साहब कहाँ रह गए? जी जी जी, आई वुड लाइक टू से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नदीम साहब। नदीम फयाज फ्रॉम असगर माल कॉलेज रावलपिंडी। आपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अबाउट द लीडरशिप ऑफ द प्रिंसिपल और क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप, but I would like to have some points and your experience on team building as well. Team building पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में। ये और कुछ लोग जो है अपना माइक बंद करके जी जी, बाकी माइक अगर टीम बिल्डिंग, अगर आपने ये नोट किया हो,
जिस तरह मैंने इस स्लाइड से भी आप देखें, लेफ्ट में ग्रे कलर का एक बना हुआ जिसमें कहा हुआ है इज अ डेलीगेटर। और मैंने आई थिंक अपनी स्लाइडों में 2-3 कहा है उसको द प्रिंसिपल है कॉलेजियल लोगों ने तो जरा माइक पॉइंट करते ये तो आपस में लोग बात, आप खामोश हो मुझे मैं जवाब दूंगा। अब भी आवाजें आना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नदीम साहब को टीम बिल्डिंग पे, तो टीम बिल्डिंग से मुराद यही है बेसिकली, जो मैंने ये अर्ज करने की कोशिश की कि द प्रिंसिपल को खुद काम नहीं करने चाहिए, ही शुड डेलीगेट एंड डेलीगेट टीम बिल्डिंग अपने स्टाफ फैकल्टी की, अपने फैकल्टी में वो कमेटीज बनाए, ग्रुप्स बनाए और उनके अंदर काम को बांटे, एंड दैट इज हाउ टीम बिल्डिंग विल टेक प्लेस इन कॉलेज। मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि वो अकेला ऐसा कुछ करे, मैंने अपनी स्लाइडों में ये कहा है, इवन इस स्लाइड के अंदर डेलीगेटर का ये जो वर्ड मैंने कहा है, और वो उससे यही कि वो डेलीगेट करे, और डेलीगेट करने में टीम बिल्डिंग होती है वो, और जिनको दे वो काम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, उन पे मुकम्मल ट्रस्ट और एतबार करे, फिर उनके ऊपर बॉसिंग ना करे, फिर वो उनको कहे कि मैं आपको प्रिंसिपल समझता हूँ इस मैटर्स में। तो सो दिस इज हाउ टीम बिल्डिंग विल टेक प्लेस इन कॉलेज। It's okay. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुजीबुल इस्लाम बोल रहा हूँ, साइंस कॉलेज वादर रोड से। मुजीब अच्छा सर, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से लीडरशिप को डिफाइन किया है, आपने बड़े अच्छे तरीके से लीडरशिप को डिफाइन किया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसमें करना चाहता हूँ। मसलन जो लीडर होता है ना, वो लाइक अ ड्राइवर, कि जिस तरह एक गाड़ी चलाने वाला होता है ना, वो अगर ड्राइवर अच्छा होगा तो वो आम गाड़ी को भी मंजिल पे पहुंचा देगा, और अगर ड्राइवर जो है वो इनकम्पिटेंट होगा तो वो आपको मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा। अब हम बहुत से कॉलेजेस में देखते हैं कि प्रिंसिपल अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, तो उसके अंदर वो जो क्वालिटीज, ये चीज़ें क्वालिटीज नहीं देखती, वो बहुत से ऐसे बंदों को अपॉइंट कर देती है जो उस कॉलेज को, अच्छे कॉलेज का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो आपने क्वालिटीज बयान की हैं प्रिंसिपल की सर, उसमें मैं ये समझता हूँ एक बड़ी अहम है, सॉल्व द प्रॉब्लम एट द कॉलेज लेवल, कि अगर हम कॉलेज लेवल पे बहुत डायरेक्टरेट या दूसरे लेवल पे प्रॉब्लम के बजाय सेक्रेटरीट लेवल पे अगर उसको बॉटम लेवल पे हो, फिर ये कि इनरोलमेंट का भी इशू होता है प्रिंसिपल के लिए, कि हमारे दाखिले जो हैं वो अक्सर कॉलेजेस में, बड़े कॉलेजेस में तो होते हैं, लेकिन बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, फिर गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स को फैसिलिटेट नहीं करती, स्टाफ की भी कमी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जिसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरीके से वो कर सकती हैं। ग्राउंड रियलिटीज सर, ग्राउंड रियलिटीज, बहुत सी ग्राउंड रियलिटी आपने थ्योरेटिकली भी बता दिया, कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं, लेकिन बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज आती हैं जो एरिया वाइज जो है वेरी करती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल वो रिजल्ट नहीं दे सकते जिसकी बुनियाद पे हम उनको अप्रिशिएट कर सके। शुक्रिया सर। ये मैं आपकी बहुत सी ऑब्जर्वेशन से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा तो कहने का ये मकसद है कि जो आपके मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनके अंदर रहते हुए आप बेहतर से बेहतर जितना कर सकते हैं करें। ये मैं आपसे एग्री कि व्हेन द गवर्नमेंट अपॉइंट्स प्रिंसिपल्स, तो वो ऐसी क्वालिटीज को सामने नहीं रखते और उनके पास कोई पैमाना नहीं है जिससे वो अपने जो टीचर्स में, प्रोफेसरों में वो डिस्टिंग्विश कर सके कि कितनी कैपेसिटी है बेहतर लीडर होने की। मैं इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये भी बात जो जिनके बारे में आप समझती हैं कि शायद ये अच्छे प्रिंसिपल ना बने, वो बात को पता चलता है दे प्रूव टू बी वेरी गुड प्रिंसिपल्स। तो इसलिए ये तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी प्रिंसिपल बन जाए, कम से कम उसने इतने साल पढ़ाया है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर उनको ये जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह चीजें पता हो तो कुछ ना कुछ वो उनके अंदर कैपेसिटी जरूर डेवलप कर जाएगी to be a better principal. Next सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सदूस खान, इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड सर। सर अभी मेरे एक ऑनरेबल दोस्त ने कहा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से सर, लाहौर। जी सर, अभी एक मेरे दोस्त ने कहा कि जी हाजिरी बहुत कम हो जाती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है,
ऐसा नहीं होता। हमारे कॉलेजेस में अंदर, मैं इंचार्ज स्टूडेंट फेयर हूँ, हमारे पास प्री एफएससी और इतना ज्यादा क्राउड आता है लोगों का कि वो पढ़ना चाहते हैं। कॉलेज में जब टीचर होते हैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसी कभी भी गैर हाजिरी का मसला नहीं होता। और अगर मैं ट्रूली स्पीकिंग है, हमारी क्लासेस लड़के दीवारों के साथ खड़े होते हैं और बेंचेस और चेयर्स कम पड़ जाती हैं। हाजिरी तब कम होती है जब टीचर लर्निंग में दिलचस्पी नहीं लेता या उसकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती। जिस सब्जेक्ट को कन्वे कर रहा होता है वह स्टूडेंट वहाँ ना बदतमीजी करते हैं, ना वहाँ कोई अग्रेसिवनेस होती है, ना डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्बेंस उन्हीं लोगों के उन्हीं एरियाज में होती है जहाँ पे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होता। दूसरा सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, थैंक यू सर। दूसरा आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट आउट ये सारे, वेल कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो एडवाइस देने वाला होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डेलीगेटर होना चाहिए। लेकिन सर वजीर साहब ने भी जैसे अभी बात कर रहे थे मेरे एक दोस्त, ये बात बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल के अंदर ये पर्सनल ट्रेड्स पैदा करने के लिए पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। अचानक एक बंदे को आप प्रिंसिपल लगा देते हैं और उससे ये सारी एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो सर ये सारा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो क्या अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पिछले साल की जो 20-25 साल की एसीज आ रहा है, उनको इस तरह तरतीब देना चाहिए कि उसमें ये क्वालिटीज मेंशन करें कि ये वेल कम्युनिकेटर है, ये टीम वर्क पे बिलीव करता है, ये शेयरिंग इंफॉर्मेशन करता है, पीयर्स ग्रुप जैसे आपने बताया, वो बड़ी जबरदस्त बात है सर, मेरे बड़ी दिल को लगी है कि वो जो हमारी वैल्यू हमारी करती है वो रियलिटी बेस्ड होती है, हम 24 घंटे उनके सामने होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर जिन लोगों में ये ज्यादा पाए जाएं, उन्हें कम से कम प्रेफरेंस देनी चाहिए कि इन्हें प्रिंसिपल्स लगाएं, ताकि वो इस टीम वर्क के और ये जिस कलेक्टिव काम है नेशन को बिल्ड करने के, क्योंकि हम नेशन बिल्डर्स हैं, हमने कौम बना के इस माशरे को देनी है, तो वो जो कारीगर है, जो वो पोटेंशियल वाला बंदा है, उसके अंदर ये सारी पोटेंशियल्स हो कि वो उन्हें कन्वे कर सके। मैं आपसे तकरीबन मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। मैं आपसे तकरीबन 100% एग्री करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ दैट द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड क्रिएट ए पूल ऑफ पीपल डिफरेंट सोर्सेज से पता करके जो उसके ख्याल में अच्छे प्रिंसिपल हो सकते हैं, और उस पूल ऑफ पीपल को वो ट्रेनिंग दे। बकायदा ट्रेनिंग कोई ये नहीं कि साल की है, नो, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको अगर ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको हफ्ते 10 दिन के कोर्स के अंदर ही समो दिया जाए, तो यू देन फ्रॉम दैट पूल, उस पूल में से पिक करके प्रिंसिपल लगाए जाए। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल सीनियरिटी के ऊपर, ये नहीं चलता। मैं अब आपको ये आजकल अखबारों में, आई एम श्योर आप अखबारें जरूर पढ़ते होंगे, आपको पता है जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट पर कितना झगड़ा शुरू हो गया, और वो थोड़ा सा नीचे जब जा रहे हैं सीनियरिटी, अब एक लेडी बहुत आउटस्टैंडिंग यहाँ हाई कोर्ट की जज है आयशा, उनको वो ले जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ ऑलरेडी प्रोटेस्ट शुरू हो गया क्योंकि वो चौथे या तीसरे नंबर के। तो ये हमारे यहाँ जो आइडिया ना कि प्योर सीनियरिटी की बेसिस पे, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे आपके कुलीग्स प्रिंसिपल बनना भी नहीं चाहते, वो अपने आप में मगन है, पढ़ाने के अंदर मगन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहते। तो मैं ये जरूर आपसे एग्री करता हूँ कि दी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड क्रिएट ए सिस्टम जिसमें वो तकरीबन जरा अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लें पोटेंशियल गुड प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स के अंदर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में वो इन्वेस्ट करें, और खास तौर पे उनमें से जो लोग चाहें कि हाँ हमें आप करवा दें ट्रेनिंग, उनको करें, ट्रेनिंग दें उनको। तो बट आपने बाकी भी जो एक दो चीजें की, मैं ये भी आपसे एग्री कर, मैं गॉर्डन कॉलेज में जब खुद पढ़ता था, बहुत पूरा शौक दौर था, वो नया प्रिंसिपल्स का झगड़ा चल रहा था, पता ही नहीं होता था प्रिंसिपल्स कौन थे, और मैं बीए का स्टूडेंट था। बीए में आपको पता है सारे शैतान स्टूडेंट्स घुसे होते हैं जब तक कहीं फ्यूचर नहीं होता, लेकिन स्टिल आई रिमेंबर ये कामरान रसूल जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तौर पर रिटायर हुए हैं, ये उस वक्त CSS कर रहे थे और इंग्लिश पढ़ाते थे गॉर्डन कॉलेज में। ये यकीन करें ये इतना जबरदस्त पढ़ाते थे कि इनकी क्लास बीए के शरारती स्टूडेंट से भी खचाखच भरी होती थी, और हमें आज तक इनके लेक्चर याद है कि बायरन के ऊपर इन्होंने क्या पढ़ाया, कोल्ड्रिच पे क्या पढ़ाया, इंग्लिश पोएट्री, कीट्स पे क्या पढ़ाया, क्योंकि ये स्पिरिट एंथुजियाज्म के साथ वहां तैयार होके आके पढ़ाते थे, पूरा लेक्चर देते थे। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये इवन बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में मैं खुद स्टूडेंट्स रहा हूँ, लेकिन हमें पता था कि कौन सा टीचर दिल से पढ़ाता है, दिल जमी से पढ़ाता है, कम्युनिकेटर है, अच्छा है, उसकी क्लास में हम जाते थे और बैठते थे, उसकी क्लास में किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं करने देते थे और उसकी इज्जत भी करते थे बहुत ज्यादा। सो यू नो
माय ओन सेंसेस कि अच्छे टीचर की जो वर्थ है वो स्टूडेंट को पता होती है, इवन नालायक स्टूडेंट को भी पता होती है कि ये टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं। तो सो यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये बहुत पते की 2-4 बातें की हैं फॉर द बेनिफिट। बहुत शुक्रिया सर आपका। और एक अगर सर एक गुजारिश गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान से। जी कौन मुल्तान से कौन बोल रहे हैं जी? इलाही फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। आपका लेक्चर माशाल्लाह बहुत अच्छा था और आपने बताया कि एक अच्छे प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए, और थोड़ा सा रिसर्च के हवाले से भी आपने बात की कि रिसोर्सेज कम है, ज़्यादा है, भारत उसमें परफॉर्म करना है। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे यहाँ कई मॉडल आए हैं, कई चेंज हुए हैं, मॉडल के अंदर जो दिया जा रहा है मॉडल उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। जैसे अभी हमारा जो एडीपी प्रोग्राम है अंदर जो मॉडल लाए हैं वो खुद कह रहे हैं इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो इन हालात में प्रिंसिपल फिर वहाँ पे कैसे? दूसरी बात ये है कि हमारा सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। टीचर का जो सोशल स्टेटस है और उसको पेशा वराना तरक्की के यकसा मौके और इसके साथ जो उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं इनको भी देखा जाना चाहिए। और सोसाइटी के बारे से मैं बात करता हूँ कि मेरे अपने कॉलेज के अंदर, चूँकि मैं लीगल कमेटी का मेंबर हूँ और कंस्ट्रक्शन कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो हम एक दीवार बना रहे हैं, हमारी अपनी जगह है, लेकिन फौरी तौर पे जो लोग थे कॉलोनी वाले वो कोर्ट में चले गए और फिर वहाँ पे जज साहब जो उन्होंने स्टे दे दिया और उनके 25-30 जो लायर थे वो इकट्ठे होकर वहाँ पे आ गए। अब इस तरह के जो हालात बन जाते हैं जिसमें सोसाइटी जो उसका एक माइंडसेट बन चुका है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो प्रिंसिपल को परफॉर्म करना उसके लिए और उससे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करना तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल इस तरफ भी हमें चलना चाहिए कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो। इस हवाले से अगर आप अपना इनपुट दें काइंड। थैंक यू। देखें आपने जो बातें की हैं मुझे उन बातों से कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने बातें जो की हैं वो ठीक की हैं, लेकिन जो आप अगर मेरे सारे लेक्चर का कोई निचोड़ निकालना चाहते हैं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो अगर आप मेरी चैलेंजेस की स्लाइड निकाल लें तो मैं आपको ये कह, चैलेंजेस हैं, बहुत हैं। आपने जो ये 3-4 पॉइंट आउट किए ये चैलेंजेस है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप और बाहर की दुनिया से आप अवेयर भी रहें क्या हो रहा है, कि आप बाहर की दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया और चैलेंजेस जो हैं आपके अदालत के फलाना स्टे आ गया, ये अपनी जगह पे हैं, उतना ही करें जितनी आपकी इस्तिताअत है, उसके अंदर ही आप सुकून और इत्मीनान तलाश करें, उसके अंदर ही आप जितनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं करें। अगर स्टे दे दिया है कोर्ट ने, आप लड़ें कोर्ट में जाके। मैं आपको ये बता दूं, मेरी बात हो गए जी, फंड्स बेशक लैप्स हो गए, फिर आ जाएंगे फंड्स की दोबारा कोशिश कर दें, उनको उज़र बता देंगे जी ये स्टे की वजह से मैं नहीं स्पेंड कर सका। और जज साहब को आप लेट से मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अंदर एज चेयरमैन एफबीआर, एज चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मैं हाई कोर्ट रावलपिंडी हाई कोर्ट में 5 या 6 दफा पर्सनली जा चुका हूं अपने एक केस के लिए। वो कोर्ट ने नहीं मुझे बुलाया, लेकिन मैं एक फैसला चाहता था, मैं खुद चला जाता और मैं दूसरों के भी आर्गूमेंट सुने। अपने वकील के अलावा मैंने उन 2 जजों को कहा, डिवीजन बेंच को, मैं अपने आर्गूमेंट खुद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे भी आर्गूमेंट करने दी और मेरे फेवर में फैसला किया। तो मैंने किया एज चेयरमैन एफबीआर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रिंसिपल वो कहते होंगे, हो सकता है आप किसी क्लर्क को या पता नहीं किसको जज के पास भेज देते हो। नो सर, हमारी पूरी कमेटी है सर, हमारी पूरी कमेटी है और वो कमेटी जो है वो बताता खुद, उसके अंदर हमारे एक जो मोहतरम कोलीग हैं वो कायदा पहले एक लायर रहे हैं, तो खुद हम जाके प्लीड करते हैं, जज के सामने पेश होते हैं, उनका सारा जो रिकॉर्ड है वो हमने इकट्ठा किया है। लेकिन हमें थोड़ा सा मतलब फिर वो नुक्ता मुद्दा आ जाता है कि जुडिशरी है, आपका एक स्पेसिफिक मसला हो गया ना कॉलेज में, तो ठीक है। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जो मरूजी हालात हैं वो अपनी जगह पे हैं, उन मरूजी हालात के अंदर ही आपने जो इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है जी। तो बट आई एग्री विद आपके, सोसाइटी में जो भी इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे हैं, बट स्टिल आपको पूरी कोशिश करनी है। ये आपकी बात से ये इंप्रेशन नहीं मुझे मिलना चाहिए कि जी मैं आपके पास एक एक्सक्यूज है कुछ ना करने का, ओ जी मेरी तनख्वाहें ठीक नहीं है, वो जितनी मिल रही है उसके साथ तो जस्टिस करें ना आप। मेरा यही वो कैरियर इस तरह ठीक नहीं, वो जो आपको गवर्नमेंट दे रही है उसके साथ तो आप करें ना, जस्टिस करें। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इट इज नॉट लाइक। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। अच्छा सर, प्रोफेसर नजर फरीद बोल रहा हूँ इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज से। आपका सर लेक्चर सुना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने दरिया को
कूजे में बंद कर दिया है। यकीन जाने आपकी स्लाइड का एक एक फिक्रा जो है उस पर पूरा एक आर्टिकल बनता है। बेशुमार सवाल ऐसे हैं जो ज़हनों में आते हैं, आपने हर चीज़ को एड्रेस किया है। तो